Hello and welcome to the Next in Biology. This lecture is the part of the series in which we used to discuss the MDCAT past papers. We have already discussed the past paper of 2024 and 2022, and you can have the links on the screen for those as well. In today's lecture, we will be discussing the UHS MDCAT past paper of 2022, and in this video, we will be discussing the biology MCQs that appeared in the test and also explain that why the correct option is considered as correct and why the other options will be considered as wrong. So without any delay, let's start today's video. The very first MCQ that appeared in the paper was which virus is known as bacteriophage. वो कौन सा वायरस है जिसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं? The options were virus that infects plants, virus that infects bacteria, virus that infects fungi, or the virus that infects animals. These were the four options, and the correct option is virus that infects bacteria. बैक्टीरियोफेज की टर्म ऐसे वायरस के लिए यूज की जाती है और इसका बेसिकली द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज बैक्टीरिया ईटिंग ईटिंग फेज का मतलब होता है टू ईट आपको कॉन्सेप्ट याद होगा फ्रॉम फैगोसाइटोसिस राइट सेल ईटिंग सो बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस दैट हैज द एबिलिटी टू इन्फेक्ट बैक्टीरियाज ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका कैप्सिड हेड है इट कंटेन्स द डीएनए अलोंग विद दैट ये इसके स्पाइक्स हैं टेल फाइबर्स हैं टॉल ट्यूब एक्सेट्रा तो इसका स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए इसके डिफरेंट पार्ट्स के हवाले से अच्छा वायरसेस दैट इन्फेक्ट्स प्लांट्स आर टर्म्ड एज फाइटोपैथोजेनिक वायरसेस ऐसे वायरसेस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम फाइटोपैथोजेनिक कहते हैं सच वायरस दैट इन्फेक्ट्स फंजाई आर कॉल्ड एज माइकोवायरस द टर्म माइको मींस फंजाई आप लोगों ने ये चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर एंड द वायरस दैट इन्फेक्ट्स एनिमल्स आर कॉल्ड एज एनिमल वायरसेस और जू वायरसेस का टर्म उनके लिए यूज की जाती है नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ रेट्रोवायरस ऐसा कौन से डिजीज है जो कि रेट्रोवायरस कॉज करते हैं द ऑप्शंस आर टेटनस एड्स measles and polio and the correct option of this one is AIDS is being caused by the HIV virus human immunodeficiency virus and HIV is a single stranded RNA that is converted to DNA via reverse transcriptase process के through इसमें जो single stranded RNA होता है that is converted into the DNA that's why it is called as a retrovirus टेटनस जो है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है विच इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई मीजल्स और पोलियो आर द viral diseases. Measles is caused by the measles virus and polio is caused by the polio virus. The third MCQ is who discovered the bacteriophage? Bacteriophage किसने discover किया? The option were Edward Jenner, Louis Pasteur, Todd and D'Herelle. I don't know how to pronounce this actually. And the fourth option was Ivanovsky. And the correct option on these among these four is this difficult name that is the Todd and D'Herelle. These are the two scientists जिन्होंने bacteriophage को discover किया था respectively. इनकी contribution है in 1915 and 1917. एडवर्ड जेनर का जो रोल है ही डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लुई पास्चर इज फेमस फॉर द टेक्निक ऑफ पास्चराइजेशन एज वेल एज ही इज आल्सो इन्वॉल्वड इन द presentation of germ theory of disease. Evanovsky is the scientist that first gave the evidence of viruses. ये इनका भी आपको नाम लाजमी याद होना चाहिए for the MCQs purposes. The fourth MCQ is which of the following is not a viral disease? The option is AIDS, rabies, मम्प्स एंड द ट्यूबरक्लोसिस इसके अंदर से हमें बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए कि ट्यूबरक्लोसिस इज द राइट ऑप्शन टीबी जिसको हम कॉमनली कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस अ बैक्टीरियम नॉट अ वायरस ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का स्ट्रक्चर है ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज नॉट अ वायरल डिजीज द रेस्ट ऑफ द थ्री आर द वायरल डिजीजेस एड्स जैसे हमने अभी पिछले एमसीक्यू में पढ़ा था इट इज कॉज्ड बाय एचआईवी rabies is caused by the rabies virus and mumps is caused by the mumps virus a type of a paramyxovirus. The fifth MCQ is viruses can be crystallized because they have DNA only, they have RNA only, they behave as non-living outside hosts, or they can be killed by antibiotics. Antibiotics cannot kill them. So the correct option is C that they behave as non-living outside the host. हमें ये पता है कि viruses जो हैं they are present at the बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और अभी तक हम इनको लिविंग या नॉन लिविंग कंप्लीट डिटर्मिनेशन के साथ नहीं कह सकते कि दे आर वेदर लिविंग और नॉन लिविंग बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड दे बिहेव एज अ नॉन लिविंग आउटसाइड होस्ट some DNAs, some viruses have RNA instead of DNA, so this is not right. Similarly, जब RNA only, no, not all viruses have RNA, some have DNA as well. Or antibiotics, so obviously they cannot affect the viruses; they work only against bacteria. Okay, so the next MCQ is
What is the end product of glucose by yeast in anaerobic respiration? Anaerobic respiration yeast के अंदर उसके end products हमारे पास क्या कुछ हैं? The options are ethanol and oxygen, ethanol and water, ethanol and CO2, and lactic acid and CO2. And the correct option over here is ethanol and CO2. Anaerobic respiration जो कि yeast के अंदर perform होती है, उसका अगर हम end product देखें तो हमारे पास CO2 और ethanol produce होता है इस reaction के नतीजे में. यहाँ पे ग्लूकोज, दिस इज बेसिकली थ्री स्टेप मैकेनिज्म. पहले ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पायरुवेट, पायरुवेट जो है वो एसिटाल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होता है और इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास CO2 के मॉलिक्यूल्स निकल रहे होते हैं. एंड इन द थर्ड प्रोसेस वी हैव एथेनॉल एज द एंड प्रोडक्ट. एथेनॉल एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट ये शो करती है कि इट इज़ नॉट एनारोबिक कंडीशंस. ठीक है, सो ऑक्सीजन जहाँ पर भी आएगा तो हम उसको स्ट्रेट अवे इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे इस ऑप्शन को. एथेनॉल एंड वाटर इज, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का ये बाय प्रोडक्ट नहीं है, इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. लैक्टिक एसिड एंड CO2 दिस अकर्स इन सम बैक्टीरिया एंड ह्यूमन मसल्स, नॉट यीस्ट. यीस्ट के अंदर लैक्टिक एसिड और CO2 नहीं होता. यीस्ट के अंदर जो एनारोबिक है वहाँ पर CO2 और एथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है. The next question is, each carrier in electron transport chain is first dash and then dash. It is first broken down and then regenerated. It is first generated and then broken down. It is first oxidized and reduced, or it is first reduced and oxidized. And the correct option is it is first reduced and then oxidized. This is the correct sequence of events that is happening. ब्रोकन डाउन का ऑप्शन इन दोनों के अंदर नहीं होता है. ईटीसी के अंदर देयर इज नो सच थिंग एज द ब्रोकन डाउन. ईटीसी कैरियर्स आर नॉट ब्रोकन डाउन एंड रिबिल्ड, दे जस्ट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलरली जो सेकंड ऑप्शन है वो भी इसके अंदर इज नॉट राइट के वो साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिजनरेशन नहीं है. और ये ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इज द रिवर्स ऑफ द एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ रेडॉक्स इवेंट. सो द करेक्ट आंसर इज दे आर फर्स्ट रिड्यूस and then they are oxidized. ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है and we have different electron carriers over here. यहाँ पर सबसे पहले जो कैरियर्स हैं वो रिसीव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, then they lose the electrons. The next MCQ number 8 was electron transport chain explain. फोटोफॉस्फोरिलेशन को एक्सप्लेन कर रहा है, जी स्कीम को एक्सप्लेन कर रहा है, फोटोलाइसिस को या मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस को. एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस MCQ was mechanism of ATP synthesis. ATP synthesis is the main mechanism which is being controlled by the ETC. Photophosphorylation is also part of the ETC, but this is a process that use photosynthesis के अंदर ये particularly involved होता है. ETC जो electron transport chain है ये एक broader concept है जो कि photosynthesis as well as respiration दोनों के अंदर, cellular respiration और photosynthesis दोनों के अंदर हो रहा होता है. So that's why we will be focusing on the option D, the mechanism of ATP synthesis. Z scheme is the one that is basically in the लाइट डिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन फ्लो इन फोटोसिंथेसिस के अंदर Z स्कीम है. अगर आपने याद हो PS2 से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, then they come into the PS1 and then they will be received by the primary electron transporter, primary electron acceptor, sorry. So this is the Z scheme is specifically for the light dependent electron flow in photosynthesis. Photolysis is the basically the breakdown of molecules in the presence of light, particularly breakdown of water in the presence of light. And ये जो water है ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स के तौर पर एक्ट करता है, ये ETC का पार्ट नहीं है. So the correct option of this MCQ was mechanism of ATP synthesis. The next option is, what is the color of chlorophyll B molecule? Either it is bluish green, yellowish green, dark green or reddish green. And the correct option is that it is the bluish green in color. क्लोरोफिल बी का जो मॉलिक्यूल है वो ब्लूइश ग्रीन इन कलर होता है बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू absorb as much of the, हमें ये बात पता है कि कलर ऑफ द पिगमेंट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द एबिलिटी टू absorb the specific color. So that's why it is bluish green in color. येलोइश ग्रीन इज द कलर ऑफ द क्लोरोफिल ए. डार्क ग्रीन ओवरऑल जो हमारे लीव्स हैं उनका कलर होता है. और रेडिश ग्रीन क्लोरोफिल्स के अंदर रेडिश ग्रीन वाला कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो कि रेडिश ग्रीन कलर हो. Okay, so the next MCQ in the test was that upon initial hydrolysis, starch yields maltose. Option A, option B was glucose, option C is sucrose, or the option D is mannose. So the right option of this MCQ was maltose. स्टार्च जो है अपॉन देयर हाइड्रोलिसिस बेसिकली माल्टोज को इनिशियली जो है वो माल्टोज को प्रोड्यूस करता है एंड लेटर ऑन उसकी जब फर्दर हाइड्रोलिसिस होता है देन वी विल गेट
ग्लूकोज फ्रॉम इट। अगर हम स्टार्च का मॉलिक्यूल देखें तो हमें पता चलेगा कि स्टार्च इज बेसिकली मेड अप ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज एंड अपॉन हाइड्रोलिसिस, जब यहाँ पर जो अमाइलेज एंजाइम है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, तो upon the breakdown, first maltose will be produced and then in the later stages glucose will be produced. So maltose is the correct option of this MCQ. Glucose is produced after further hydrolysis of maltose, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। सक्रोज जो है ये एक डिफरेंट कंपाउंड है दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज की कम्बिनेशन से बनता है। मैनोज इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट बट ये स्टार्च का कंपोनेंट नहीं है। सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस MCQ was maltose, option A. Next MCQ was that human bone cells contains dash percent of water. How much water is present in the human bone cells? The options are 20%, 40%, 85% और 90%. ह्यूमन बोन सेल्स के अंदर वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज़ द 20%। अगर हम ह्यूमन सेल्स को देखें, ह्यूमन सेल्स के अंदर वाटर कंटेंट को देखें तो हमें पता चलता है कि ब्रेन जो है हमारा दैट कंटेन 75% ऑफ द वाटर, ब्लड के अंदर वी हैव 83%, heart has 79%, bones have 22%, that is basically close to the 20%, muscles have 75%, liver 85%, and kidney has 83%। ये सारी जो परसेंटेज है ह्यूमन सेल्स के अंदर वाटर की, ये आप सबको पता होनी चाहिए एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द MCQs। उसके बाद जो नेक्स्ट MCQ है दैट इज द यूनिक थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ द फुली फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड कॉन्स्टिट्यूट्स। इज इट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इज इट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और इट इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इस MCQ को जरा समझने की जरूरत है। द यूनिक थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ द फुली फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड, यहाँ पे एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन की बात हो रही है और वो फुली फोल्डेड है, so that means the correct option will be the option C, that is the tertiary structure of the protein। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है बेसिकली अगर हम इसको देखें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज अ लीनियर चेन, जो कि इनिशियली जब राइबोसोम से प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं तो वहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द बीटा प्लेटेड शीट्स और द अल्फा हेलिक्स फॉर्म के अंदर हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर इज द वन जहाँ पर पॉलीपेप्टाइड होती है वो कम्प्लीटली फोल्डेड होती है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है दैट इन्वॉल्व्स मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अगर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती देन विल बी द करेक्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन की बात की हुई है, सो दैट्स व्हाई वी हैव चोजन द ऑप्शन सी, दैट इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज बेसिकली लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स पैटर्न्स लाइक अल्फा हेलिसेस एंड बीटा प्लेटेड शीट्स, और जबकि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज व्हेन मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर इन्वॉल्व्ड। The next MCQ was butyric acid is a dash carbon fatty acid, that how many carbon atoms are present in the butyric acid? The options are 6, 2, 4 or 8 and the correct option is the 4। butyric acid का अगर हम formula देखें तो it is C4H8O2, so that is basically the structure of the butyric acid, so the right option was option 4। Caproic acid is the one fatty acid that has 6 carbon atoms. Acetic acid has 2 carbon atoms, a very common acid, and caprolic acid is the one that has 8 carbon atoms in it। The next MCQ was which of the following is a conjugated molecule? जो गिवन ऑप्शंस होंगे उनमें से हमने कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करना है। द ऑप्शंस वर प्रोटीन, लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड विटामिन्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बनते होते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो प्रोटीन एक प्योर बायोमॉलिक्यूल है, लिपिड भी एक बायोमॉलिक्यूल है, विटामिन्स इज अ टाइप ऑफ लिपिड्स बट इट इज़ नॉट अ conjugated molecule, and the option C, that is the glycoproteins, which is a combination of glucose and proteins, उन दोनों के मिलकर उन दोनों के combination से glycoproteins form होते हैं, तो that is the right option। The next MCQ is hydrolysis process is a reverse of dash process, photolysis, condensation, reduction या convection। हाइड्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बेसिकली अ सिंगल कंपाउंड विल बी ब्रोकन डाउन इनटू
टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास दो डिफरेंट कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, उस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस कहते होते हैं। और ये रिवर्स प्रोसेस है किसका? इट्स द रिवर्स प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन या सिंथेसिस रिएक्शन जो है, जिसके अंदर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। सो हाइड्रोलिसिस इज द ऑपोजिट ऑफ कंडेंसेशन। फोटोलाइसिस हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इट इज द ब्रेकडाउन इन द फॉर्म ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। डिडक्शन जो है इट इज नॉट अ केमिस्ट्री टर्म, इट इज बेसिकली अ लॉजिकल रीजनिंग की टर्म है, जहाँ से हम कोई कंक्लूजन्स को डिड्यूस कर रहे होते हैं। और कन्वेक्शन जो है दैट इज बेसिकली अ हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म। यहाँ इस डायग्राम में आपको देख सकते हैं कि ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बेसिकली अ सिंगल मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड एंड दैट इज टर्म्ड एज कंडेंसेशन। और अगर ये सिंगल कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू टू डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट विल बी टर्म्ड एज हाइड्रोलिसिस। सो हाइड्रोलिसिस इज द रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। जैसे फोटोलाइसिस के बारे में बता दिया कि इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स यूजिंग लाइट एनर्जी। डिडक्शन कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है, इसका मतलब होता है ड्राइंग कंक्लूजन, और ये मोस्टली हम लॉजिक्स के अंदर फाइंड आउट करते हैं। आपने साइंटिफिक मेथड के अंदर डिडक्शन पढ़ा होगा। और कन्वेक्शन जो है दैट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू फ्लूइड्स, ये हीट ट्रांसफर का एक मैकेनिज्म है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज प्रोटीन्स आर द मेन डैश ऑफ द सेल। either they are the physiological components, or they are the functional components, they are structural components, or they are biological components. ये थोड़ा सा ट्रिकी एमसीक्यू है बिकॉज ऑल द फोर ऑप्शंस आर बेसिकली, ये सारे ही प्रोटीन्स इन चारों में ही समहाउ इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज प्रोटीन्स एंजाइम्स भी फॉर्म कर रहे हैं, प्रोटीन मसल्स भी फॉर्म कर रहे हैं। ये फंक्शनल रोल भी प्ले करता है, फिजियोलॉजिकल रोल प्ले करता है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट भी है और ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी है। बट यहाँ पर उन्होंने पूछा व्हाट इज द मेन डैश ऑफ द सेल, तो मेनली इट इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल। So option C will be the right option, that is the structural component of the cell. Next MCQ is cell wall may be absent in which of the following? Option A is plant and algae, option B is algae and fungi, option C is fungi and archaea, and the option C is bacteria and archaea. In this, the correct option was bacteria and archaea is the correct option. Why is it so? Because plant and algae always have the cell wall. ये इन दोनों के पास cell wall मौजूद है, mostly cellulose से मिलकर बनी होती है। Algae and fungi also have always have the cell wall. Fungi की although जो cell wall है that is made up of chitin, ये chitin से मिलकर बनती है, लेकिन they always have cell wall. इसी तरह fungi and archaea के अंदर fungi जो है they will always have cell wall. Archaea may or may not have the cell wall. So the correct option will be bacteria, जिनके अंदर there is a possibility that the cell wall is maybe absent हो यहाँ पर. The next MCQ is structure formed by the invagination of plasma membrane and involved in cell division and DNA replication of prokaryotic cells. ऐसे कौन से structures हैं जो कि cell division और DNA replication of the prokaryotic cell के अंदर involved होते हैं? Lysosomes, हमें पता है कि lysosome is not the correct option because they are the membrane bounded organelles. Mesosomes yes they can be. Golgi bodies और phragmoplasts. So the correct option, यहाँ पे बहुत clear हमें differentiation पता चल रही है कि mesosome is the correct option of this MCQ. The next is which of the following are single membranous organelles? Mitochondria and ribosomes, cytosol, mitochondria and ribosomes, Golgi bodies, lysosome and endoplasmic reticulum, or Golgi bodies, lysosomes and mitochondria. बहुत आसान है, माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल मौजूद है। तीनों ऑप्शंस में तीन ऑप्शंस हैं जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, सिर्फ ये एक ऑप्शन है जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है। Golgi bodies, lysosomes and ER, all three of them are the single membranous organelles, so the correct option will be option C. The next question is movement of molecules against the concentration gradient is passive transport, active transport, facilitated diffusion or filtration. Now the correct option is, हमने बात की against the concentration gradient. Against the concentration gradient का मतलब होता है कि they are moving from the low concentration to higher concentration. तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन के दौरान, मूवमेंट के दौरान हमें एनर्जी चाहिए होती है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे एटीपी कंज्यूम हो रहे होते हैं, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज ये हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होती है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसी तरह अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें तो ये भी बेसिकली काइंड ऑफ डिफ्यूजन है जो कि विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के की जाती है। और फिल्ट्रेशन जो है ये बेसिकली इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस मेम्ब्रेन्स ड्यू टू प्रेशर एंड नॉट ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस एमसीक्यू वाज एक्टिव ट्रांसपोर्ट.
The next MCQ is the digestive vacuoles and autophagosomes are also known as phagocytosis, primary lysosome and autophagy, secondary lysosome या peroxisome. यहाँ पे the correct option is secondary lysosome, that is the option C. Phagocytosis is not the correct option because ये एक process है, ये कोई structure नहीं है. इसी तरह प्राइमरी लाइसोसोम ऐसे लाइसोसोम्स होते हैं जो कि बेसिकली अभी अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर रहे होते और ऑटोफेजी इज अ डिफरेंट मैकेनिज्म, सेल ईटिंग का मैकेनिज्म है जो सेल खुद को ईट करता है अपने ऑर्गेनल्स को, सरप्लस ऑर्गेनल्स को. तो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन. पेरोक्सिसोम तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट है ऑर्गेनल है जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज द सेकेंडरी लाइसोसोम. The next is the cell wall of bacteria is made up of. Cell wall की bacteria किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? Either it is made up of chitin, it is made up of murine, it is made up of cellulose or it is made up of hemicellulose. And the correct option is murine. Murine जिसको हम peptidoglycan भी कहते हैं, ये already यहाँ पर शो हो रहा था. तो murine is the correct option. Chitin is the cell wall of fungi. Cellulose or hemicellulose is the cell wall of plant, and algae is basically made up of cellulose and hemicellulose. So the correct option is murine. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके जो म्यूरिन बेसिकली इज अ कम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स का कम्बिनेशन से म्यूरिन फॉर्म होता है. दैट्स व्हाई द टर्म पेप्टिडोग्लाइकन इज यूज्ड. The next MCQ is which one is common in both prokaryotic and eukaryotic cell? Cytoplasmic streaming movements, ribosome, binary fission, or nuclear envelope. I guess it should be very easy for you that the ribosome is the one organelle that is present in both prokaryotic and eukaryotic cells. When you are confirmed about some option, then just mark it and move to the next MCQ. Do not waste time on thinking about the other options and everything. So just mark it and move ahead. The next MCQ is there is no clear difference between dendrites and axon in sensory neurons except their thickness, their length, their terminal portions, or none of the above. The correct option over here is the terminal portion. Dendrites और axons के जो terminal portion है वो दोनों different functions perform करते हैं. Dendrites basically reception of stimulus के अंदर involved होता है. उनके जो terminal portions हैं वो stimulus को receive कर रहे होते हैं, और जो एक्सॉन है वो बेसिकली ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. सो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. इनकी थिकनेस कैन बी इक्वल. सेंसरी न्यूरॉन्स में लेंथ भी बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर रही होती. सो द मोर स्पेसिफिक या मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज द टर्मिनल पोर्शन, दैट इज द सी. The next option is the neurotransmitter active outside the CNS is acetylcholine, dopamine, glutamate or serotonin, and the correct option is acetylcholine. PNS का peripheral nervous system का बहुत ही important और बहुत ही main neurotransmitter है acetylcholine. डोपामिन CNS के अंदर present होता है, सेरोटोनिन भी CNS के अंदर present होता है, और ग्लूटामेट इज ऑल्सो CNS के न्यूरोट्रांसमीटर हैं. सेरोटोनिन बेसिकली मूड रेगुलेशन और स्लीप के अंदर इन्वॉल्व है. डोपामिन भी प्लेयर के साथ अलॉन्ग विद ओके इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन बेसिकली हमारे मूड्स सॉरी मेमोरी के अंदर इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व. सो द PNS का जो मेजर और बड़ा मेन न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज एसिटाइलकोलाइन. The next MCQ is a hormone that plays a major role in social bonding, childbirth, milk ejection and sexual reproduction. A single hormone जो कि ये चार functions perform कर रहा है. The options are estrogen, oxytocin, progesterone and testosterone. And the love hormone, oxytocin is the correct option in it. Oxytocin is the one that is involved in all four functions. ये childbirth के अंदर भी involved है. मसल कॉन्ट्रैक्शंस को ये स्टिमुलेट करता है. सोशल बॉन्डिंग एफिलिएशन के अंदर भी ऑक्सीटोसिन के रोल है. मिल्क की प्रोडक्शन के अंदर नहीं, मिल्क की इंजेक्शन के अंदर ऑक्सीटोसिन रोल प्ले करता है. मेमोरी ग्लैंड्स को डायलेट करता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो इसका रोल है ही. एस्ट्रोजन जो है वो बेसिकली इन्वॉल्व होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, सेकेंडरी फीमेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर. प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी की मेंटेनेंस के अंदर और यूट्रिन वॉल्स को जो स्ट्रेंथ है वो प्रिपेयर कर रहा होता है. और टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है जो कि मेल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको, जैसे वॉइस के अंदर, बियर्ड प्रोडक्ट, उन सब के अंदर और स्पर्म प्रोडक्शन के अंदर ये इन्वॉल्व होता है. Which hormone is produced by the placenta? Follicle stimulating hormone or luteinizing hormone, progesterone or testosterone.
or the correct option is progesterone. Progesterone is the one that's being produced by the placenta. FSH is produced by anterior pituitary gland. LH is also produced by anterior pituitary. Testosterone is produced by testes in the male. So the correct option is progesterone. The next MCQ is the middle layer of meninges is arachnoid matter, pia matter, dura matter, or cranium. So the correct option over here is arachnoid matter. Arachnoid matter is the middle layer of the meninges. अगर हम इनकी लेयर्स को देखें तो यहाँ पर हमें इसकी ज़रा अरेंजमेंट को समझ आती है. जो हमारा स्कैल्प है उसके आउटर मोस्ट पे देयर इज अ स्किन इज प्रेजेंट, फिर पेरियोस्टियम है, फिर क्रेनियल एक बोनी स्ट्रक्चर है. इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द meninges यहाँ से स्टार्ट होते हैं और these are the three layers of the meninges. The outermost is the dura mater, the middle layer is the arachnoid matter, and the last is the pia mater. So the middle layer portion is the middle layer is arachnoid matter, and that is the correct option. Next MCQ is the part of the brain which guides smooth and accurate motions and maintains body position is cerebrum, cerebellum, pons या medulla. एंड हमारे बॉडी के बैलेंस के साथ इक्विलिब्रियम के साथ जो चीज़ मेंटेन डील करते हैं दैट इज द सेरिबलम. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेरिबेलम इज द राइट ऑप्शन. यहाँ पर अगर हम देखते हैं सेरिब्रम ऑल्दो इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन बट इसका बॉडी बैलेंस जो है वो स्पेसिफिक रोल है सेरिबेलम का. Okay, so the next MCQ is water vascular system or ambulacral system is a unique and complex system specially present in sponges, arthropods, echinoderms and fishes. And this is a unique system जो कि इन organisms को movement के अंदर locomotion के अंदर help करता है. hydraulic system है and the correct option is echinoderms. echinoderms के अंदर ये presence होता है system. स्पॉन्जेस के अंदर एक स्पेसिफिक कनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है. आर्थ्रोपोड्स जैसे कि इंसेक्ट्स उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और फिशेस के अंदर दे आर वर्टिब्रेट्स विद क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द एकाइनोडर्म. सो द नेक्स्ट एमसीक्यू इज राउंडवर्म्स बिलोंग टू व्हिच फाइलम. राउंडवर्म्स किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? एनेलिडा, सिलेंट्रेट्स, नीमाटोडा या प्लेटीहेलमिंथस. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज नीमाटोडा. सो राउंडवर्म्स जो हैं दे आर बेसिकली organisms which are present in the phylum Nematoda. Annelida के अंदर बेसिकली सेगमेंटेड वर्म्स जैसे कि अर्थवर्म्स और लीचेस होते हैं. सिलेंट्रेट्स इज बेसिकली नाइडेरिया का एक पुराना नाम है जिसके अंदर जेलीफिश, कोरल्स और सी एनिमोन्स आर प्रेजेंट इन द सिलेंट्रेट्स. Platyhelminthes known as flatworms, planaria, tapeworms, etc. are included in the platyhelminthes. So the correct option was Nematoda. Next MCQ is silverfish is an insect, mollusks, jawless fish या cartilaginous fish. Now it is a very tricky concept. Silverfish नाम से लगता है as it is a fish but actually it is an insect. So the option A is the correct option. mollusk के अंदर snails, clams and octopuses आ जाते हैं. jawless fish basically lampreys and hagfish आ जाते हैं. cartilaginous fish के अंदर sharks, rays and skates present होते हैं. So the correct option, the name is a bit confusing, but that is the basic purpose of the MCQ actually. That how many will be consider is इसको या तो jawless fish के साथ वो बच्चे relate कर बैठेंगे या cartilaginous fish के साथ, but actually it is an insect. So the next MCQ is tissues are not found in the following animal: flatworms, sponges, cnidarians or roundworms. इन चारों में से कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स हैं जिनके अंदर टिश्यूज नहीं प्रेजेंट होते हैं? एंड द आंसर इज स्पंजेस. दैट इज द सिंपलेस्ट ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो वी हैव डन विद द हाफ ऑफ द एमसीक्यूज. टोटल 68 एमसीक्यूज हैं जिसमें से हमने 34 कर लिए हैं. The remaining 34 we will discuss in the second part of this video. So you can come back and watch this video as well. Please subscribe to the channel and very good luck for your test, for your MDCAT preparations and any other preparation about regarding the biology. Thank you.